Hello everyone, I welcome you all again in this video series in which we were discussing about the previously asked gate problem on the metal cutting. So till now we have completed up to the 29th problem. In this video we are going to start up from the 30th onward. So let's start. So in this problem, two cutting tools with tool life equations given below. So for the first tool, this tool life equation is Vt raised to n, means n की value जो है यहाँ पे that is 0.1 and C की value जो है that is 150. Okay, both the tools has different velocity means different conditions. So for value of n and value of C for the both the tools is different. Okay, the V is the cutting speed in meter per minute and the T is the tool life. So the break-even cutting speed beyond which tool 2 will have a higher life. So this is given to you that T2 is greater than T1. Now we have to find out the value of velocity, okay, means cutting speed in meter per minute. So for that, we have already discussed these problems several times. So for the first tool, I'm writing this equation like Vt1 raised to 0.10 equals to 150. Okay, so I will find out the value of T1. So T1 equals to 150 upon V raised to that is power को reciprocal करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 upon 0.10. तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ. Okay, V raised to 10. तो ये वैल्यू किसकी आ गई T1 की. नाउ सिमिलर इक्वेशन फॉर T2, V into T2 raised to 0.30 equals to 300. तो यहाँ से T2 की वैल्यू निकाल लीजिए. जब T2 की निकालेंगे तो दिस विल बी 300 by V upon 0.1 upon 0.30. ओके, तो इसको 3.33 हो जाएगा. तो 300 raised to 3.33 इक्वल अपॉन V raised to 3.33. अब आपको कंडीशन क्या गिवन है, दैट इज T2 इज ग्रेटर देन T1. तो दोनों को क्या करिए, इक्वल कर दीजिए, सॉरी इस इक्वेशन में रख दीजिए. सो दिस विल बी इक्वल्स टू T2 दैट इज 300 raised to 3.33 upon V raised to 3.33 is greater than 150 raised to 150 raised to 10 and V raised to 10. तो ये वाली जो टर्म है मैं इसको इधर ले आता हूँ और ये वाली जो टर्म है मैं इसको इधर ले आता हूँ. तो overall that is V raised to 10 minus 3.33 is greater than 150 raised to 10 upon 300 raised to 3.33. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचेगा, that is V raised to 6.67 is greater than, जो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को पूरी को, तो जो मुझे मिल रहा है दैट इज 3.25 into 10 raised to power 13. ठीक है, ये मिल रहा है. तो रेसिप्रोकल कर दीजिए पावर, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, V की. तो 3.25 into 10 raised to power 13 raised to 1 upon 6.67. ठीक है, तो यहाँ जब कैलकुलेट करेंगे इसको आप, तो V की वैल्यू मिलेगी दैट इज ग्रेटर देन 106.12 मीटर पर मिनट. ओके, तो देख लीजिए कौन सा अप्रोक्सीमेट आंसर है, दैट इज A ऑप्शन. ओके, we have discussed this question several times, that's why I'm not going in detail. Okay, so let's move to the next problem, that is 31. This type of problem we also have discussed several times, that is in which the Taylor's tool life equation in which n is 0.5 and if the cutting speed is reduced by 50%, then ratio of the new tool life to the original tool life. So Vt raised to n equals to constant, that is Taylor's tool life. दो कंडीशंस हैं, तो आपको इस इक्वेशन को लिखना पड़ेगा, दैट इज V1 T1 raised to n equals to V2 T2 raised to n. ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है. ओके, फर्स्ट कंडीशन को हम एज इट इज रहने देते हैं. सेकंड में क्या हो रहा है कि दिस लाइफ इज रिड्यूस्ड बाय 50%. ठीक है, तो 50% अगर रिड्यूस हो जाएगी तो बचेगा कितना, 50%. तो V2 इज इन टर्म्स ऑफ V1 दैट इज V1 by 2. T2 हमें एज इट इज रख देते हैं, तो V1 से V1 कैंसिल आउट. नाउ आई एम फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ T2 by T1 raised to n. तो ये वाली जो टर्म है इसको इधर ले आते हैं और ये जो 2 है इसको इधर ले जाते हैं, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 2. हमें वैल्यू किसकी चाहिए, T2 by T1 की. तो
ये क्या हो जाएगा 1/n, n की वैल्यू कितनी है 0.50, तो 2/1/0.50 कितना आ जाएगा 2/2 इक्वल टू 4. ओके, तो रेशियो विल बी इक्वल्स टू 4. ओके, let's move to the next. This is a lengthy problem, but not ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है if you know the formulas. Okay, an orthogonal cutting operation is being carried out with in which the uncut chip thickness means value of t is given to you, that is 0.010 mm. The cutting speed, that is 130 meter per minute, so the value of v is given to you. Rake angle is 15 degree, so alpha value is given. Width, I am assuming that this is small b, so that is 6 mm. It is observed that chip thickness is 0.015, so value of tc is given to you. Okay, now the cutting force, that is Fc is given to you, that is 60 Newton, and Ft, that is thrust force, is given to you, that is 25 Newton. So we have to find out the ratio of the frictional energy to the total energy. Now we have discussed this problem once, that total energy, that is equals to Fc into V, means cutting force into the cutting speed, is equals to, means total energy will be dissipated in some amount in sharing, that is Vs in Fs into Vs, plus rest of the amount is dissipated into the friction, so that is F into Vc. Okay, now अब आपको इसमें रेशियो क्या फाइंड आउट करना है, that is frictional energy, that is this is the frictional energy to the total energy, so this is the total energy. Okay, so this ratio will be equals to F into Vc upon Fc into V. Now in this ये हमें फाइंड आउट करना है. अब इसमें क्या क्या आपको गिवन है, Fc की वैल्यू आपको डायरेक्टली गिवन है और V की वैल्यू भी आपको गिवन है. F हमें फाइंड आउट करना है और Vc भी हमें फाइंड आउट करना है. F ये हमें टोटल रेशियो फाइंड आउट करना है, तो F की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें Fc और Ft की वैल्यू गिवन है, दैट इज 60 एंड 25. तो मैं क्या करता हूं, दैट इज Fc sin अल्फा प्लस Ft cos ऑफ अल्फा. ठीक है, तो Fc Ft आपको गिवन है और अल्फा भी गिवन है, तो सिंपल सा वैल्यू पुट कर दीजिए. दिस विल गिव यू Fc, दैट इज 60 into sin alpha, alpha is how much 15 degree. Okay, plus Ft, that is 25 into cos of 15 डिग्री. ओके, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से F की वैल्यू मिलेगी, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स. सो व्हाट आई एम गेटिंग इज इट्स 39.6773, दैट इज इन न्यूटन. ओके, क्योंकि Fc और Ft की वैल्यू किसमें थी, न्यूटन में, तो यहाँ से तो F मिल गया. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस Vc. सो हाउ वी विल फाइंड आउट, बेसिकली इन वन ऑफ द प्रॉब्लम प्रीवियसली मैंने आपको इसके लिए जो ट्राइंगल बनता है, वेलोसिटी ट्राइंगल, वी हैव डिस्कस दैट थिंग. ओके, तो अभी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्टली आई एम राइटिंग द फॉर्मूला. ओके, सो जो लामीज थ्योरम से हम फॉर्मूला फाइंड आउट करते हैं, दैट इज v अपॉन cos ऑफ phi माइनस अल्फा इक्वल्स टू vc अपॉन sin phi इक्वल्स टू vs, दैट इज शेयरिंग वेलोसिटी अपॉन cos ऑफ अल्फा. ओके, तो अब हम दोनों को, हमें क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल कर देना है. ठीक है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, Vc की. लेकिन Vc की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए V, जो कि हमें गिवन है, अल्फा जो कि हमें गिवन है, फाई हमें गिवन नहीं है. ओके, यहाँ पे भी फाई चाहिए, यहाँ पे भी फाई चाहिए. तो पहले क्या करते हैं हम लोग, tan फाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, r cos ऑफ अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा. नाउ r is not given to you, alpha is given to you, but for r the ratio, it's a chip thickness ratio, so where t is given to you as well as tc is also given to you, so just put the value, that is 0.010 upon 0.015. so जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगी, that is 0.667. ओके, ये मिल रही है मुझे वैल्यू ऑफ r. तो tan phi इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, r, that is 0.667 into cos of alpha, alpha is how much 15 degree, upon 1 minus r, that is 0.667 into sin 15 डिग्री. ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो जो न्यूमरेटर में वैल्यू आएगी, दैट इज 0.6443, और डिनोमिनेटर में जो आएगा, दैट इज 0.8274, दैट इज इक्वल्स टू 0.7787. तो ये वैल्यू किसकी है, tan फाई की. जब tan इनवर्स करेंगे तो यहाँ से आपको फाई की वैल्यू मिलेगी, दैट इज 37.9 डिग्री. ओके, तो
इस वैल्यू को कहाँ पुट कर दीजिए, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से v कितना, हमें vc फाइंड आउट करना है, तो vc इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, v इंटू साइन फाइव, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, अपॉन कोस फाइव माइनस अल्फा। तो v कितना है, v है आपके पास 130 मीटर पर मिनट, सो दिस इज 130 इंटू साइन फाइव, साइन इज हाउ मच, फाइव इज हाउ मच 37.9 अपॉन cos of 5 that is 37.9 minus alpha, alpha is how much 15 डिग्री। ओके, तो सिंपल सा है, कैलकुलेट कर लीजिए इसको। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मुझे जो मिल रहा है दैट इज 86.6895 मीटर पर मिनट। ओके, दिस इज वैल्यू ऑफ वीसी। नाउ वीसी यहाँ से मिल गया, एफ यहाँ से मिल गया, तो हमें इस फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है वैल्यूज को, तो पुट करिए। ओके, तो जब आप पुट करेंगे तो दिस इज एफ इंटू वी सी अपॉन एफ सी इंटू वी। तो एफ की वैल्यू कितनी है, दैट इज 39.6773 इंटू वी सी कितना मिल रहा है, दैट इज 86.6895 अपॉन एफ सी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 60, और वी की वैल्यू कितनी है 130। ओके, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू जो मिलेगी दैट इज 0.4409। ओके, नाउ अभी इसमें आपको क्या है कि अप टू 2 डेसिमली फाइंड आउट करना था, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0.44। ओके, अगर इसमें इन आपको ऐसा पूछा होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड ड्यूरिंग द फ्रिक्शन, तो इसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दैट इज परसेंटेज दैट इज डिसिपेटेड इन द फ्रिक्शन, सो दैट इज 44%। सो रेस्ट अमाउंट कहाँ जा रहा है, दैट इज इन शेयरिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Okay, so in this problem, by the way, same problem also we have discussed 2-3 times. Taylor's two-life equation मान लीजिए that is Vt raised to n equals to constant है, is used to estimate the life of a batch of identical HSS twist drills. Okay, तो ये आपका tool है, ठीक है। By drilling through a constant feed, feed आपकी constant है, and in 20 mm thick, मतलब जो आपकी thickness है plate की, that is 20 mm. Okay. नाउ जब टेस्ट 1 कंडक्ट करते हैं दैट टाइम 300 होल्स प्रोड्यूस करते हैं एट द आरपीएम ऑफ 150। तो x1 में ट्रीट कर लेता हूं, दैट इज x1 होल, x1 इज बेसिकली द होल्स। सो फर्स्ट टाइम में कितना हो रहा है आपका 300 होल्स। आपकी स्पीड कितनी है, रोटेशनल स्पीड दैट इज 150 आरपीएम। ओके, तो ओके ठीक है। सेकंड x2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, दैट इज आपको दिया है सेकंड कंडीशन के लिए, दैट इज 200 होल्स एट द आरपीएम ऑफ 300। ओके, सो दिस इज 200 होल्स एंड n2 कितना हो जाएगा आपका 300 आरपीएम। ओके, तो आपकी जो ये इक्वेशन है हम इसको मैनिपुलेट कर देते हैं, तो मैनिपुलेट करेंगे तो क्या आएगा, दैट इज n इंटू टी रेस टू n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। n जो है आपका दैट इज रोटेशनल स्पीड। तो दो कंडीशन गिवन है, तो n1 इंटू t1 रेस टू n इक्वल्स टू n2 into t2 raised to n. Now t1 and t2 जो है that is tool life of the tool 1 and tool 2 respectively. Okay. Now t1 कितना होगा कि बेसिकली मैं मान लेता हूं कि जब हम एक बार ड्रिल करते हैं तो एक ड्रिल करने के लिए मीन्स 20 mm थिकनेस का होल अगर मैं करता हूं, हम करते हैं, तो उसके लिए जो टूल लाइफ है दैट इज स्मॉल टी। ओके, तो टोटल टूल लाइफ फर्स्ट के लिए कितना हो जाएगा, कितने होल प्रोड्यूस कर सक रहे हैं उससे हम 300, तो होल कितने टूल लाइफ हो जाएगी, दैट इज 300 इंटू स्मॉल टी। सिमिलरली फॉर दिस 200 इंटू स्मॉल टी, दोनों कंडीशंस गिवन है आपको, वैल्यूज भी गिवन है, जस्ट पुट इन दैट फॉर्मूला। सो n1 is equals to 150 into t1, that is 300 into small t raised to n equals to 2 that is t2 is equals to 300 is equals into 200 into t raised to n, t raised to n cancel out। इस इक्वेशन को मैं इस तरह से लिख देता हूं, दैट इज 300 by 200 पावर n is equals to 300 by 150। ओके, यहाँ से n की वैल्यू लेंगे तो log लेना पड़ेगा हमें, तो ln 300 by 150 कितना आएगा 2, और 300 by 200 कितना आएगा ln 1.5। ठीक है, तो
जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट टाइम यू विल सी दैट व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ n दैट वी आर गेटिंग that is greater than 1. So what I'm getting is 1.7095. तो ये पहला ऐसा फॉर्मूला है अब 2001 से लेके बाद तक के जितने भी क्वेश्चन अभी हमने किए हैं उसमें दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट क्वेश्चन के जिसमें n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है. सो डोंट ट्राई टू बी कंफ्यूज क्योंकि ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि n की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 ही होगी. ठीक है, अगर आ रही है दैट्स ओके, नो इशू, नो नीड टू वरी. जो भी है नेक्स्ट कीजिए. That is what you have to find out, that maximum number of holes that can be made by another drill from a bench at a 200 rpm. तो मतलब अब आपको थर्ड कंडीशन गिवन है. ठीक है, तो थर्ड कंडीशन के लिए now ये जो आपकी दो कंडीशंस थी, ये दो कंडीशंस, इसमें हम थर्ड कंडीशन भी कंपेयर कर लेते हैं, दैट इज n3 into t3 raised to n. ठीक है, तो मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ फर्स्ट कंडीशन के. सो फर्स्ट कंडीशन n1 t1 raised to n equals to n3 t3 raised to n. ठीक है, now n1 is how much, that is 150 into 300 into t small t raised to n is how much 1.7095. okay, equals to n3 कितना है आपको 200 rpm. so this is 200 into जब 200 rpm हम यूज करते हैं तो उस टाइम पे मैं मैक्सिमम होल हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि दैट इज x3 आर द मैक्सिमम होल दैट इज प्रोड्यूस्ड. ओके, that is into small t raised to 1.7095. so this will be cancel out. now यहाँ से जब आप x3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख देता हूँ. ये वाली जो टर्म है मैं इसको इधर ले आता हूँ. तो this will give you 150 by 200 raised to पावर का रेसिप्रोकल कर रहा हूँ. so this will be 1 upon 1.7095 into how much 300. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ से x3 मिलेगा. व्हाट आई एम गेटिंग इज दैट इज 253.53. ओके, तो अप्रोक्सीमेटली 254 कंसिडर कर लीजिए क्योंकि नंबर ऑफ होल्स तो पॉइंट्स में रहेंगे नहीं. ठीक है, तो 254 होल्स दैट we are producing when we are using the rpm at 200 rpm 200. okay, so let's move to the next one. Okay, the following data corresponding to an orthogonal turning हो रही है in which 100 mm is the diameter of the rod, alpha is the rake angle that is 15 degree, uncut chip thickness that is t. okay, normal chip thickness after the cut that is tc. okay, shear angle find out करना है, तो इससे आसान प्रॉब्लम तो कुछ है ही नहीं. सिंपल सा फॉर्मूला पुट करिए, tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r sin alpha. ठीक है, r की वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन हमें इसके लिए t by tc की वैल्यू गिवन है, दैट इज t is how much, that is 0.50 and tc is how much 1.25. so when you will calculate it what I'm getting is that is 0.40. okay, so the value of r, so tan phi is equals to कितना आ जाएगा r, that is 0.40 into cos of alpha is how much 15 degree upon 1 minus r, that is 0.40 into sin 15 degree. okay, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे so this will be in numerator you will get it 0.3864 and in the denominator it will be 0.8965. ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे so this will give you 0.431. so this value is of tan phi. okay, not phi, so you have to inverse it. so from here you will get the value of phi. so this will be 23.31. okay, okay, up to 2 decimal. so this is 0.31. okay, इससे आसान प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपने देखा होगा कि दिस प्रॉब्लम्स हैज बीन आस्क्ड सेवरल टाइम्स. ओके, और जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं तो उसमें हम ये वाला जो फॉर्मूला है दैट इज tan phi equals to r cos of alpha upon 1 minus r cos sin alpha, तो ये हम लगा ही रहे हैं. तो प्लीज आप आई रिक्वेस्ट के whenever you if you are preparing for gate exam then please don't leave this metal cutting. okay, so let's move to the next problem, that is 35. okay, so this is the last problem for this video. Taylor's two life equation, that is Vt raised to n equals to constant. V is the cutting speed in meter per minute, T is the tool life in minutes. In turning operation, two tools X and Y. This is the same problem of the in this video जो हमने पहली प्रॉब्लम ली थी, सेम वही प्रॉब्लम है. वहां पे टूल 1 टूल 2 था, यहाँ पे टूल X टूल Y दिया है. ठीक है,
टूल एक्स जो है उसके लिए एन और सी की वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 0.3 एंड 60। टूल वाई जो है उसके लिए एन की वैल्यू है 0.6 एंड सी की वैल्यू है 90। नाउ बोथ दैट, पहले इतना कर लेते हैं। फर्स्ट वी टी रेस टू एन आपका कांस्टेंट, दैट इज टेलर्स रूल लाइफ इक्वेशन। फर्स्ट के लिए लगाऊंगा, दैट इज टी रेस टू 0.30 इक्वल्स टू 60, और सेकंड के लिए कितना हो जाएगा, वी टी रेस टू 0.60 equals to 90. Now, both tools will have the same tool life. Now, this is the condition. अब tool x and tool y है, तो मैं इस tool life को क्या करता हूँ, tx and ty कर देता हूँ. But condition क्या given है, both tool has the same tool life. Okay. तो इसका मतलब क्या है, आपको tx is equals to ty given है. Okay. Now, यहाँ से हम divide नहीं करेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से पहले tx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी क्योंकि हमें कटिंग स्पीड ही फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए क्या है कि दोनों में हम कटिंग स्पीड की वैल्यू को सेम रखेंगे, ठीक है, प्लीज याद रखना है। सो दिस विल गिव यू tx इक्वल्स टू 60 अपॉन v रेस टू 1 अपॉन 0.30। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से मैनिपुलेट कर देता हूँ, दैट इज 60 रेस टू 3.33, ओके, एंड v रेस टू 3.33। यहाँ से ty की वैल्यू निकल जाएगी, ty इक्वल्स टू 90 अपॉन v रेस टू 1 बाई 0.60। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपको मिलेगा, दैट इज हाउ मच आई एम गेटिंग, दैट इज 90 रेस टू 1.67 अपॉन v रेस टू 1.67, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी ty की, और ये है tx की, तो दोनों इस इक्वेशन में रख दीजिए। इस इक्वेशन में जब रखेंगे, दैट इज 60 रेस टू 3.33 अपॉन v रेस टू 3.33 इक्वल्स टू 90 रेस टू 1.67 अपॉन v रेस टू 1.67, ठीक है। इस वैल्यू को मैं इधर ले आता हूँ, ये वाली जो वैल्यू है मैं उसको इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आपको दैट इज v 3.33 माइनस 1.67 इक्वल्स टू 60 raised to 3.33 अपॉन 90 raised to 1.67, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, दैट इज 454.63, ओके। अब ये वैल्यू किसकी मिल रही है, दैट इज v raised to 1.66 की, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 454.63, रेसिप्रोकल ऑफ पावर दैट इज 1 अपॉन 1.66, ठीक है। तो ये यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा, दैट इज 39.90 मीटर पर मिनट, ओके, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, दैट इज अप टू 1 डेसिमल करना है, ऑब्वियसली दैट इज 39.9, तो ये आंसर होगा, ठीक है। इन दिस वीडियो वी आर स्टॉपिंग अप टू हियर, फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट फ्रॉम 36 onward. So thank you so much guys.